Hello students. Hi. This is Yasin sir. Okay, from Yasin sir's academy. All the students who know me and who doesn't know me. Students, I am a postgraduate in commerce, specialized in accountancy, and I am into teaching from more than 15 years into commerce field. And I am running Yasin sir's academy, where we conduct all school section and commerce section courses. Students, this video, the main purpose behind this video is many of the students of 12th pass out has requested me, has asked me कि sir now what after 12th? 12th के बाद क्या करना है? So our small efforts, okay, we have taken to tell the students in brief what you can do after 12th standard. If you want much more detail information about the courses in which you are more interested, then you can call us, okay, you can meet us so we can talk to you in detail, because there are many things which we can tell you, but the video has a limited time. So in short time I want to give you some maximum general informations about which are the courses which you can do it after 12th standard. तो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स काफ़ी लंबी छुट्टी आती है. ओके, इन दैट टाइम बेसिकली यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू डू, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि सर क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. फैमिली मेम्बर्स ये बोल रहे हैं, ओके, आपके जो ब्रदर सिस्टर है, कजिन्स है, वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो. सो दैट इज यू हैव टू डिसाइड राइट नाउ. मैं हमेशा दो क्राइटेरिया बोलता हूँ स्टूडेंट्स टू डिसाइड अ करियर. First of all, your interest. This is very, very important. In coming 35 to 40 years, you will be doing that particular thing, okay? And if you are not interested in that, so there is no purpose, there will be never any growth in that thing. Second thing, finance, money is very important aspect of all the things which you decide, because everything finally depends on that. Our life basically depends on that. So two things you should be thinking on. First is your satisfaction, your interest in that particular work, so you can excel in that, you can become a meritocratic in that, okay? And second thing is the money factor also, okay? So these are the two main important aspects on which you have to decide. But generally after 12 in India, basically in Maharashtra, Mumbai, we always go for these two courses, okay? The diploma courses and the degree courses. मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, तो उससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगी कि क्या कर सकते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड. स्टूडेंट्स, इफ यू सी ऑन माय राइट हैंड साइड, ओके, इफ यू सी ऑन माय राइट हैंड साइड, ओके, वी हैव दिस डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 12th के बाद आप वो डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं. जनरली इट टेक्स 2 to 3 years टू कंप्लीट दिस डिप्लोमा कोर्सेज. कुछ डिप्लोमा कोर्सेज मैंने लिखा है. नाउअडेज तो यू हैव दिस इंटरनेट फैसिलिटी, दिस गूगल, ओके, यूट्यूब, वेयर यू कैन गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन. But always there is like a someone who behave like our academic parent और अपने parent की तरह कोई समझा दे. So that is what we are doing right now, okay? तो आपको जनरल गाइडलाइंस दे रहा हूँ. वैसे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नेट से भी मिल सकती है, और अगर पर्सनल टच चाहिए तो यू कैन कॉल अस, वी कैन गिव यू मच मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन. सो डिप्लोमा कोर्सेज 2 to 3 years, okay, that goes. You can do hotel management, okay, you can do fashion या ज्वेलरी डिजाइनिंग, you can go for an event management courses, you can go for different computer courses. शॉर्ट में मैं बता दूं तो होटल मैनेजमेंट में, ओके, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में आपको सिखाया जाता है, ओके. एविएशन कर भी एक होता है, एविएशन के बारे में भी ये द कोर्सेज बेसिकली हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट ओपन द जॉब प्रोस्पेक्ट इन ऑल दिस एस्पेक्ट. Fashion designing, jewelry designing, many of the students also opt for that particular thing. Event management बहुत कुछ चल रहा है. जैसे हम लोग देखते हैं बचपन से, अगर आपको आदत है कि कोई भी चीज़ आपकी फैमिली में हो रही, तो you are the person who take the initiative, okay, to manage everything. कि कैसे क्या होगा, बर्थडे करना है, एनिवर्सरी करना है, ओके, या मैरिज फंक्शन है, या कॉलेज में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो, तो आपका इंटरेस्ट अगर वो है, तो इवेंट मैनेजमेंट इज़ दी वन ऑफ द गुड कोर्स फॉर यू. डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज आर देयर, यू कैन डू मेनी कंप्यूटर कोर्सेज, वेब डिज़ाइनिंग, और काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसके बारे में आप डिटेल में उसमें इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट. So these are some diploma courses which you can do, students.
Next, if we come to the degree courses, majority of the students after 12th standard go for such degree courses. Degree courses generally students are for 3 years. 3 साल का होता है degree courses. एक एकदम ट्रेडिशनल डिग्री कोर्स जो हमारा चले आ रहा है, जैसे हमारे टाइम पे खाली वो जनरली वही कोर्स हुआ करता था, बीकॉम, प्योर बीकॉम. बीकॉम इज लाइक अ भेलपुरी, ओके, व्हिच वी कॉल इन मुंबई. इट्स अ मिक्सचर ऑफ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड द थियोरी सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज आपको मिल जाता है. ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल बीकॉम, प्लेन बीकॉम, 3 years कोर्स. ओके, so BCom is Bachelor in Commerce, Theory and Practical, mixture of everything. Then comes BAF, Bachelor in Accounting Finance. Many of the students have a good interest in accounting and finance, want to do something specialized in accounting and finance. So BAF is the course in which more practical subjects are there, more subjects which are relating to accounting and finance. If you are good at accounts and finance, if you like the subject, BAF is the course for you students. Okay. Then comes BMS. BMS is Bachelor in Management Studies. Okay, BMS में 13th standard is a general standard. Okay, whereas when you go in 14, that is SY BMS, you get a specialization. Whether you want to go for finance, marketing, or HR. Okay, so if your platform in future is to go for some MBA courses, okay, then according to that you can decide your subject. So you get a specialization of subjects also. In recent few years में यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया हुआ है. So accordingly you can decide to go for that courses. Okay, if you are good at practical, go for finance. If you are good at theory, go for marketing. मतलब marketing में भी मतलब you should have some skills students. मतलब कुछ लोग ऐसे convincing power जिनका बड़ा strong होता है, तो always best option है marketing के लिए. And every business wants to market their product. आजकल films भी हम देखते हैं, film stars आके अपनी business, अपनी picture promote करते हैं, तो वो marketing skills है और वो सबके पास नहीं होती है. ओके, कुछ इनबॉर्न होती है, कुछ डेवलप करनी होती है. इफ यू आर गुड एट दैट देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट. और HR ह्यूमन रिसोर्स, ओके, अगर आप इंसानों को अच्छी तरह समझते हो, ओके, साइकोलॉजी अच्छी तरीके से समझ में आती है आपको, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. So that is BMS, but that option comes in 14th standard. Okay, 13 is a general BMS course. Then comes BBI, Bachelor in Banking and Insurance. Today is the world of banking and insurance. Students, if you are interested in such courses relating to banking and insurance, हर चीज़ का आजकल इंश्योरेंस आ रहा है. ओके, तो वो कैसे क्या है, अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. ओके, स्पेशलाइजिंग इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. BMM, बैचलर इन मास मीडिया, दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉपुलर. मास मीडिया आजकल इतने लेवल तक डेवलप्ड हो गया है. ओके, सो देर आर मेनी जॉब एस्पेक्ट एंड करियर एस्पेक्ट इन दैट. बट एज आई टोल्ड यू, in everything you should be at the top, and you can be at the top only with your interest in that students. कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोफेशन सिलेक्ट करते हो, उसमें आपका इंटरेस्ट अगर नहीं है तो यू कैन एक्सेल, यू कैन ग्रो, यू कैन प्रॉस्पर, यू कैन अर्न मनी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड विच इज द कोर्स बेस्ट फॉर मी. ओके, तो अकॉर्डिंगली यू गो फॉर दैट, यू डोंट वेस्ट टाइम. और आप स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन आपकी मेहनत भी वैसी लगती है, आप कभी घड़ी नहीं देखते हो, टाइम नहीं देखते हो कि आप क्या कर रहे हो. ओके, बस आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so these are the different 3 years courses, degree courses which you can do after 12. Many colleges give this particular courses. Okay, along with this course you can also go for some professional course. आज बोलते हैं ना खाली bachelor degree is not enough. तो खाली बैचलर डिग्री लेकर काम नहीं चलेगा. पहले चल जाता था 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, और अभी नहीं चलेगा. You should have some professional degree with you. You should have some skills with you. Then only a company will hire you. Then only you can do something in the world. Okay? So अगर आपके पास जैसे कि बीकॉम के कोर्सेज जनरली मॉर्निंग के होते हैं, तो 7 to 10, 7 to 11 में ये कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं. आफ्टर 11 देन व्हाट? बहुत सारे स्टूडेंट्स go for some other courses or do something else. But if you are not doing something else, then you can also, and if you are very good at academics, you can go along with this professional courses. मतलब साथ में कर सकते हैं. Simultaneously you can do professional courses, and very core professional course of commerce is chartered accountancy and company secretary. This comes for 4 years. 12 के बाद और 4 साल लगते हैं if you clear in first attempt this courses. चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो आपको पता ही होगा, एवरीथिंग रिलेटिंग विद फाइनेंस, सब फाइनेंस से रिलेटेड है. ओके, एवरीथिंग मोर ऑफ फाइनेंस, एंड आवर कंट्री इज टोटली डीलिंग with this is one of the important aspect of our country. Okay, the finance is a very important thing. So chartered accountant is
the demand for chartered accountancy in every company, in everywhere, is very much likely. CS क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है. अभी ये सेक्रेटरी का बहुत लोगों को इंटेंशन है, सेक्रेटरी मतलब वो बॉस के पीछे कुछ नोट डाउन करती है, कुछ जॉट डाउन करती है. वैसा नहीं होता है स्टूडेंट्स. कंपनी सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी. ओके, एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनी को क्या करना चाहिए, व्हाट आर द पैरामीटर्स विच द कंपनी हैज टू फॉलो, व्हाट आर द गाइडलाइंस विच आर गिवन इन द कंपनीज एक्ट. तो जो लीगल इंफॉर्मेशन जो कंपनी को कोई देता है वो होता है कंपनी सेक्रेटरी. तो हर एक कंपनी को जितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है उतनी कंपनी सेक्रेटरी की भी जरूरत है. तो ये कोर्स आप कर सकते हो. ओके, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड अलॉन्ग विथ योर डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज. ओके, आप उसके साथ में भी कर सकते हो. जनरली सब डिग्री के साथ करते हैं, बीकॉम या बैफ ये सब्जेक्ट ये लेकर साथ में CS भी कर सकते हैं. तो ये भी आप कर सकते हो स्टूडेंट्स. और अगर से फॉर एग्जांपल अगर आप CS 12 के बाद नहीं करना चाहते, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि सर आई कांट मैनेज बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम, देन टू यू हैव एन ऑप्शन स्टूडेंट्स. मतलब एक 3 साल का ये डिग्री कोर्स कंप्लीट करो एंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू कैन कंटिन्यू विद CS और आपको सीधा इंटरमीडिएट स्टेज से स्टार्ट करना होगा. बट उसमें कंडीशन खाली यही है कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पे यू शुड स्कोर 60% एंड अबव एग्रीगेट. तो ये कंडीशन था. वैसे कंडीशन वो इंस्टीट्यूट की भी चेंज होती रहती बाय टाइम टू टाइम. जनरली दिस इज व्हाट हैज बीन फॉलोड. ओके, कि ग्रेजुएशन लेवल पे इफ यू कंप्लीट 60% एंड अबव एग्रीगेट यू आर एलिजिबल फॉर इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ CA एंड CS. आप वो भी कर सकते हो. या आप MBA की तैयारी कर सकते हो. जैसे आप 13-14 स्टैंडर्ड में होगे तो आप वो CAT CET की एंट्रेंस एग्जाम है. ओके, NMAT की एग्जाम है. ओके, सिम्बायोसिस. ओके, ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं हर एक इंस्टीट्यूट का. तो वो आप क्लियर कर दोगे तो यू कैन गो फॉर MBA कोर्स ऑल्सो. देन टू यू कैन स्पेशलाइज. ओके, तो वो 2 साल का कोर्स होता है. CAT CET की एग्जाम्स क्लियर करने के बाद बैंक PO का भी एग्जाम्स दे सकते हैं. बैंकिंग जॉब्स के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो. यू कैन गो फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम्स. जो कि IS का एग्जाम्स गवर्नमेंट का एग्जाम्स होता है, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो. लॉ कर सकते हो आप. इंटरनेशनल लॉ CLAT का एक एग्जाम्स होता है, वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो. यू कैन गो फॉर नेट सेट. आप नेट सेट कर एक कोर्स होता है जो कंप्लीट करने के बाद यू कैन कम इनटू टीचिंग इनटू डिग्री कॉलेजेस. या B.Ed कर आप जूनियर कॉलेज में पढ़ा सकते हो, स्कूल में पढ़ा सकते हो. यू कैन कम इनटू टीचिंग प्रोफेशन. दैट टू इज अ वेरी गुड एंड नोबल career and you can also excel in that also students. Nowadays this is also a very good profession. You can go for advertising. आप एडवर्टाइजिंग फील्ड में कुछ कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद. टैक्स कंसल्टेंसी में आप जा सकते हो. स्टॉक मार्केट में आपको इंटरेस्ट है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स के हाउ टू बिकम अ ब्रोकर और वगैरह इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोर्सेज भी काफ़ी सारे होते हैं. दिस विल हेल्प यू एट योर पर्सनल लेवल. तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप ग्रेजुएशन लेवल के बाद भी कर सकते हो. तो 12 के बाद या तो आप डिप्लोमा कोर्सेज करो या डिग्री कोर्सेज करो. डिग्री के साथ साथ प्रोफेशनल करो. अगर नहीं कर सकते तो आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप यू कैन गो ऑप्ट फॉर सच कोर्सेज. ग्रेजुएशन के बाद भी अगर नहीं हुआ, अगर ये कुछ नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट्स आप और एक चीज़ कर सकते हो. यू कैन कंप्लीट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन. मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो. आप MCOM कर सकते हो. ओके, उसमें आप 16 ईयर्स भी, खाली MCOM 1 भी अगर आप क्लियर करते हो यू कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा. बिकॉज वंस यू कंप्लीट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यू कैन गो फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा. ओके, आपको 2 to 3 ईयर्स का स्टूडेंट वीज़ा मिलता है. UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आप किधर भी ट्राई कर सकते हो. एंड यू कैन ट्राई फॉर फर्दर एजुकेशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी. आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में वो चीज़ें भी कर सकते हो. ओके, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर यू कैन अर्न एंड यू कैन वर्क ऑल्सो. तो यू गेट एन ऑफिशियली लीगल वीज़ा स्टूडेंट एजुकेशन बेस पर. यू कैन वर्क देयर एंड यू कैन एजुकेट योर सेल्फ. यू कैन कंप्लीट योर एजुकेशन एट हायर यूनिवर्सिटी. थोड़ा उसका कॉस्ट फाइनेंसिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट इफ़ यू कैन मैनेज दैट यू कैन डू दैट ऑल्सो. ओके, एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पर आपको बताने को. आप जैसे 12 के बाद CS करते हो, ये भी कर सकते हो. वेरियस कोर्सेज आर देयर, सेट, टोफेल, आइल्स. ओके, फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हो स्टूडेंट्स. इसमें बेसिकली आपका इंग्लिश ग्रामर, योर जनरल नॉलेज, ओके, और थोड़ा मैथमेटिक्स वगैरह, लॉजिस्टिक, ये इसका नॉलेज आपको होना चाहिए. सो दैट ऑल्सो यू कैन क्लियर इट एंड यू कैन ट्राई फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. So these are the general things
which you can do after 12 students. आप एक बार उसको go through कर सकते हो. And for any further queries, आपको कुछ doubts या queries या कोई profession या career के बारे में detail में if you want to know, so you can also call us, you can meet us, so we can guide you. This is just a small effort which is taken by us. तो आपको एक general idea मिल जाएगी कि कौन से courses आप कर सकते हो after 12th standard. Okay, so please students, one of the important thing which I always see after 12th standard, okay, many students get drop out. Okay, बहुत सारे students को ऐसा लगता है या शायद फाइनेंशियल कंडीशन कभी ठीक नहीं होती है या मेंटल कंडीशन कभी ठीक नहीं होती कि 12th के बाद छोड़ देते हैं, कॉल सेंटर्स में जॉब करने लगते हैं या बाकी किधर भी जॉब करने लगते हैं. टेम्पररी दे अर्न अ गुड अमाउंट, बट in the long run it's very difficult to survive that. Okay, very few after that survives. Okay, majority have a failure after that. So my suggestion is to you is that students think education as an investment. It's a long term investment. When you invest right now at this age, you will get a better fruit in future. You will have a successful future ahead. Okay, don't consider it as an expense कि ये खर्चा हो रहा है या ऐसा हो रहा है. Some way, if your finance is very tight, manage the education expenditures. Okay, but see to that you educate yourself, because that is an important tool which will help you in future. So this is my suggestion to you. Okay, if you have any doubts, queries, you can always call us, you can ask us. For any particular profession, if you want to know, you can call us personally, so we will guide you in that profession. So this is just a general gist of the professions which you can do after 12th standard. So that's all from my side, students. Okay, please take care of yourself and please work hard for a bright future ahead. Thank you, students.